Okay, good afternoon class. Today we are going to start with our new chapter, which is your sexual reproduction in flowering plants. So this is now from now we are going to starting with the 12th standard chapter. So this is the very first chapter that we have to do, which is the sexual reproduction in flowering plants. Is that clear? Let's take a bit overview. Like we have studied morphology, right? So हमको बेसिक्स पता है कि what all structures are there of plants. Yes, plants के बारे में हमने बेसिक्स तो पढ़े हैं. So we might be knowing about that, right? So we know plants में roots, stem, leaves होते हैं, flowers होते हैं. So since this is a flowering plant, our main focus is going to be the flower. Why flower is our main focus? Because flower is your reproductive part. Yes, flower के अंदर ही हमारे reproductive parts हैं plants के. So that is the reason this chapter is whole about your flowering. Okay, so let's discuss what all things we are going to look for. Okay, so in this chapter, see, understand what are the major points. So हम लोगों ने ये chapter को divide किया. First we'll just basically understand कि what are your reproductive parts of your flower and all. Then our main chapter is divided into three categories: your post-fertilization, your fertilization and your pre-fertilization events. So तीन parts में हमने divide किया events को. ठीक है? Is it clear? Sure? पक्का? So what all things we are going to see? We will just give a general look to your morphology. Then we are going to look for your male reproductive parts and formation of your PG. PG here is your pollen grain. Okay? And we are going to also talk about your ovules के formation कैसे हो रहा है. Then we are going to talk about pollination. Pollination पता है क्या है guys? Yes? Very good. So then we are going to talk about pollination, then fertilization. Then we'll just give a small, discussion on your fruit seed, which is going to be a post-fertilizing event. Yes? We'll also discuss here about how your embryo forms and how is your endosperm forming. Yes? Yeah, we can say their development we are going to discuss. Cool? Yes? Chalo, let's give an overview to the. So what is flower? If I talk about flower, flower is nothing but your modified shoot with the condensed excess, जो swollen part होता है flower का, ठीक है, the mid part, which is going to be your thalamus. And the appendages are going to be your floral organs, जिसमें हमारे whorls आ जाएंगे. Your whorls are 4 whorls. Yes, calyx, corolla, gymnosium, gynoecium. Your gymnosium and androecium and androecium and gynoecium. Yes. So your androecium and gynoecium are your essential whorls because they are your reproductive organs. And calyx and corolla are your accessory whorls. अब androecium में क्या आता है? You will have stamen. Stamen में you are going to have anther and filament. Anther में हमारा pollen grain होगा, which is nothing but your male gamete. Yes, which is going to be your microsporophyll. Clear? Then in gynoecium we have pistil, which is also known as your carpel. Yes. उसमें होता है stigma style ovary. और ओवरी में ऑब्वियसली विल हैव ओव्यूल एग और इसको हम बुलाएंगे मेगास्पोरोफिल. एम आई क्लियर? सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर चारों वर्ल्स प्रेजेंट है तो हम उसको कंप्लीट फ्लावर बुलाएंगे, कोई भी एक वर्ल्ड एब्सेंट है तो उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर बुलाएंगे. ऑल दोज पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? मॉर्फो में ये सब पढ़ा है हम लोग ने. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू रिपीट एवरीथिंग अगेन. यस, श्योर? चलो, सो लेट्स टॉक. यहाँ पे आते हैं हम लोग. ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ब्रैक्टेड फ्लावर. एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेड. एकदम सिंपल. पेडिसिल जो स्टॉक होती है लीफ के यहाँ पे रेस, अगर वो एब्सेंट है तो फ्लावर को हम बोलेंगे ससाइल फ्लावर. एंड अगर स्मॉल है तो उसको हम बोलेंगे सब ससाइल. और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल हैव पेडिसिलेट फ्लावर. Then you have tepals. So we have discussed now when sepals and petals cannot be distinguished, we are going to call it tepals.
अब टेपल्स में भी जब ग्रीन कलर के होंगे तो उसको सेपेलॉइड टेपल बोल देंगे, और अगर कलर्ड है तो पेटलॉइड टेपल। ईजी। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हिबिस्कस फ्लावर का। सो लेट्स सी, या सो दिस इज योर फ्लावर, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों भी प्रेजेंट है। यस, या सो कैन यू गाइस से स्टिग्मा, देन दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं विच आर गोइंग टू बी योर एग, देन दिस इज योर पेडिसल विच इज द स्टॉक, this is your thalamus, this swollen part, these are your petals, filament and anther. Yes, then you have this जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं पेटल्स वगैरह को, सेपल्स। यस, तो ये सारे यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखे हैं इस पार्ट में, थियोरेटिकली ऑल दोज टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिड। यस, वी हैव स्टडीड ऑल दिस इन मॉर्फोलॉजी चैप्टर। यस, पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े। अब यहाँ पे मैंने वापस ये क्यों प्रोजेक्ट किया, बिकॉज नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इन योर HSC बोर्ड एज वेल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द वे दैट हमारा दोनों कवर हो जाए, हमारा नीट का भी कवर हो जाए और हमारा HSC का भी कवर हो जाए। यस, चलो, आई होप तुम लोग ने ये देख लिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो, लेट्स टॉक अबाउट एंथर, क्योंकि हमारे लिए अब एंथर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज योर एंथर इज गोइंग टू हैव योर पोलन ग्रेन्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड हाउ योर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म इनसाइड योर एंथर। यस, चलो, सो योर एंथर, फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज गोइंग टू बी योर बायलोब्ड। 2 लोब्स हैं, उनको हम कट करके देखेंगे तो ईच लोब में हमको 2 थीका दिखेंगे, तो टोटल हमारे पास 4 थीका है। 4 थीका मतलब 4 लोब्यूल्स है। रेस, सो योर पोलन ग्रेन, सो आई कॉल माई एंथर एज अ डाइशियस एंथर। क्या बोलाऊंगी मैं मेरे एंथर को? डाइशियस एंथर विच इज टेट्रास्पोरेंजिएट। यू अंडरस्टूड? See, normal language में I explain you, but we need to go with the exact terms what are used. Hence, we are going through in this way. Diathecious क्यों है समझा? Why I am calling it tetrasporangiate? Is it clear? Yes. So then we have epipetalous. Epipetalous मतलब क्या? जब filaments पेटल से ऊपर होते हैं, that is going to be called as epipetalous. ये भी हमने पढ़ा है। सो इन बायलोब स्ट्रक्चर, ये जो थीका है या बायलोब स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नथिंग बट योर फैक्ट्री ऑफ पोलन ग्रेन। वाई फैक्ट्री ऑफ पोलन ग्रेन? बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर योर पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। करेक्ट? यस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, श्योर। नीचे जो थैलामस से अटैच होगा फिलामेंट का पार्ट, उसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे, एंड द अपर पार्ट इज गोइंग टू बी योर डिस्टल एंड। ओके, नाउ सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। हम लोग एक पार्ट सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, एक थीका देख रहे हैं। सो एक थीका में क्या है? लेयर्स है, ठीक है। देयर आर 4 layers outside your microsporangia. How many layers? 4 layers. What are those 4 layers? You have epidermal या epidermis, which is the outer layer. Then you have endothecium, which later dries and it is going to help you to break your pollen grains. Break in the sense एंथर से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे, पोलन सैक से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यही जो है यही पार्ट हमारा पोलन सैक बनने वाला है। Then you have middle layer, which is going to degenerate before meiosis. When it is going to degenerate, it is going to degenerate before meiosis. Lastly, very important, जिसके फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, which is tapetum. What is the function of tapetum? Tapetum का काम क्या है? It is going to provide nutrition to your cell, या we can say pollen grain. अब in this condition your pollen grain can have 2 different types. या tapetum के पास 2 different type के structures form होते हैं. एक होता है amoeboid structure and दूसरा होता है secretory structure. Moreover we'll say tapetum का structure होगा ये, ठीक है. Secretory क्यों? It's very obvious. And amoeboid is irregular. Okay.
Once your microsporangium is going to mature, it is going to convert into pollen sac. Pollen sac में होता है sporangious tissues, which is going to be your pollen mother cell. Yes. अब इन PMC को हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं. नाउ दीज PMC विल फर्दर डू माइटोसिस, मियोसिस एंड ऑल टू फॉर्म योर एक्चुअल पोलन ग्रेन, जो तुम्हारा फिर मेल गैमेट बनाएगा. यस, समझो. लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जो हम लोग ने अभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर. कैन यू सी द स्ट्रक्चर? यस. So these is the exactly how your anther is going to look. Okay. ये हमने जो layers की बात की, epidermis, endothecium, middle, then inside you have microspore mother cell and then you have tape tip. The 4 layers we discussed. Coming back to this part, 4 parts दिख रहे हैं. बीच में you have vascular strand, plant है इसके लिए. अंदर sporogenous cell है जो आगे जाके pollen mother cell बनाने वाला है. Then these are the connective tissues that are present to keep everything combined. Clear? चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा microsporogenesis, which is the formation of your pollen grain or male gamete we can say. Very importantly we need to understand. See, हम लोग ने पढ़ा है something called as haploid diploid. ठीक है, तो हमारा जो pollen mother cell होगा, जो पोलन मदर सेल है वो हमेशा डिप्लॉयड होगा. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो सबसे पहला डिविजन मुझे करना है दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू बी योर मियोसिस, बिकॉज गैमेट्स नीड टू बी हैप्लॉयड. सो फर्स्ट हमने क्या किया, मियोसिस किया. 4 सेल्स बने, 3 डीजेनरेट हो गए, लेट्स कंसीडर. और एक में क्या हो रहा है, वापस एक माइटोसिस होगा. एक मियोसिस हुआ, अब एक माइटोसिस होगा. माइटोसिस से 2 सेल बने. 1 सेल इज गोइंग टू बी माई वेजिटेटिव सेल एंड द अदर सेल इज गोइंग टू बी माई जनरेटिव सेल. माई वेजिटेटिव सेल इज गोइंग टू मेक पोलन ट्यूब आफ्टर fertilizing after your this thing pollination, and your next part which is your generative cell is going to be your gamete. यहाँ तक ठीक है. अब मेजॉरिटीली आई कैन से कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही केस हो रहा है. दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस, बट इन 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म व्हाट विल हैपन, देयर इज गोइंग टू बी वन मोर माइटोसिस हैपनिंग. अब ये जो एक और माइटोसिस है दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर जनरेटिव सेल, एंड हेंस यू आर गोइंग टू हैव योर पोलन ग्रेन एट 3 सेल स्टेज. मतलब 2 मेल गैमेट्स बन गए और एक वेजिटेटिव सेल. समझा? सो द डिविजन इज गोइंग टू बी हियर. इज इट क्लियर? या जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yeah, I'm sorry. Let's continue. Yeah. So we were talking about the male gametes, right? The formation of 2 male gametes. कब होगा? It is going to occur in 40% of the angiosperm. 60% of your angiosperms are going to shed at 2 cell stage. Simple, easy. Now let's see the structure of your this thing. ठीक है, टेट्राड, क्योंकि हमारे 4 सेल्स बनने वाले, तो हाउ दे आर गोइंग टू अरेंज हम लोग वो देखेंगे. फर्स्ट है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जहाँ पे 3 इक्वल हाफ्स बनते हैं. क्लियर? सेकेंड इज आइसोबायलैटरल स्ट्रक्चर वेयर वी आर गोइंग टू सी 4 इक्वल हाफ्स. देन इन डेस्थिशेट वी आर गोइंग टू सी 3 पार्ट्स. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस? इफ यू विल सी हियर वी आर गोइंग टू हैव, आई हैव यूज्ड द वर्ड 3 इक्वल पार्ट्स. Whereas if you will say in this case, I have made it random थोड़ा सा. ठीक है? This is smaller, this is bigger, and this is more bigger. Then you have T-shaped where you have here 2 cells and 2 cells. So this is giving you the idea of this T. Lastly is your linear structure where we have made everything in a single line. ठीक है? Easy? Yeah. इसका structure clear है बेटा? चलो हम लोग next देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू लुक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ योर पोलन ग्रेन. अब पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में कैसा स्ट्रक्चर होगा और क्या होगा? योर पोलन ग्रेन का स्टडी इज नोन एज पेलेनोलॉजी. क्या बुलाते हैं पोलन ग्रेन की स्टडी को? पेलेनोलॉजी. नाउ द फर्स्ट, योर पोलन ग्रेन इज योर फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट. क्या है पोलन ग्रेन? योर फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट.
and they are going to be well preserved for years. क्यों? Because of a specific thing that they have. We'll talk about it. ठीक है, अब इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पेरिकल होगा, they gonna 25 to 30 mm in diameter. Now why they are not getting disrupted so easily? Because they have something called as sporopollenin. ठीक है, sporopollenin, इसके वजह से they are well preserved and they can be kept as fossils. So normally से हम लोग पोलन लेते हैं, ऐसा स्मैश करके कर देते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ वेल प्रिजर्व होता है, दैट मीन्स उसको एसिडिटी, बेसिसिटी, पीएच, एंजाइम एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैम्पर नहीं कर सकती. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर डू नॉट अलाउ एनी एसिड और एंजाइम टू एंटर एंड इट इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट. देन अगर मैं पोलन ग्रेन, एक सिंगल पोलन ग्रेन की बात करूँ तो उसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? दीज आर सर्टन लेयर्स दे हैव एक्साइम, जिसमें ये हमारा स्पोरोलेनिन है. Then they have intine which is made up of your cellulose and pectin. Then internally क्या होता है? अभी जो ये आउटर लाइन है उसके साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर. क्या बोलेंगे? जर्म पोर्स. So they are on your non-layered wall opening, basically your last layer में. Okay? अब पोलन ग्रेन को हम लोग कैसे स्टोर करके रख सकते हैं? We can store them in liquid nitrogen at -196 degree Celsius for years. कहाँ पे रखूँगी मैं? मेरे घर पे रखूँगी स्टोर करके? नहीं. Where we are going to keep? We are going to keep them in a pollen bank. Now why pollen grains are good? Pollen grains के ना काफ़ी सारे चीज़ें मिलती हैं हमको, ठीक है, because they are rich in nutrients. Okay, so they can be used as food supplement, they can be used as syrups and they can also be used as tablets. ठीक है, ये पार्ट के ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है. क्लियर? अब हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ से to the next topic which is going to be about your female. Yes, अब फीमेल में क्या था? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी था. yes, पक्का? चलो, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है जनरल स्ट्रक्चर. अब दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज योर स्टाइल, देन दिस इज योर ओवरी. ओवरी के अंदर होता है ओवरी सैक. ठीक है, ओवरी सैक होता है. देन फ्रॉम द पार्ट वेयर द पोलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर इज गोइंग टू बी अ माइक्रोपाइल एंड, एंड उसके ऑपोजिट का जो एंड होगा वो चलाजल एंड होगा. रिमेंबर वन थिंग, हाउ टू रिमेंबर, हमेशा चलाजल एंड के साइड पे ही एंटीपोडल सेल होंगे. ठीक है, अब ये सेल कैसे फॉर्म होते हैं हम पढ़ेंगे, बट अंडरस्टैंड दे, अंडरस्टूड. और एग हमेशा माइक्रोपाइल एंड के पास ही होगा, एंड दैट माइक्रोपाइल एंड कैन बी दिस वर्ड, दिस वर्ड, दिस वर्ड, दिस वर्ड, एनीवे. ठीक है, इजी. और क्या होता है हमारे पास? यू हैव इंटीग्यूमेंट्स सराउंडिंग योर ovary sac. Then you have funicle and placenta. Same funicle placenta जैसा हमारे पास होता है स्टेबिलिटी के लिए. Yes, so you have funicle. इंटीग्यूमेंट्स का बात किया हमने, माइक्रोपाइल एंड का बात किया, एम्ब्रियो सैक, चलाजल एंड, या एंटीपोडल्स वी टॉक. बीच में ना एक सेल होता है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलार न्यूक्लियर. क्या बुलाते हैं उनको? पोलार न्यूक्लियर. फिर देर इज सम लिक्विड विच इज नोन एज न्यूसिलस विच इज अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज. अब इस न्यूसिलस का काम क्या है? इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ फूड रिजर्व फॉर योर एग्स. खाना तो चाहिए ना, समझे? चलो, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. जैसे मेल में पीएमसी था, वैसा फीमेल में यू विल हैव एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल. So what will happen here? Very first, your MMC is going to do meiosis. MMC was 2N. meiosis से वो क्या हो गया? meiosis से क्या होगा? N होगा. तो मुझे 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे. सिर्फ एक ही आगे बढ़ेगा. अब जो एक आगे बढ़ेगा वो करेगा माइटोसिस फर्स्ट. सो एक माइटोसिस से मुझे अगेन मिल गए 4 सेल्स. अब ये 4 सेल्स वापस माइटोसिस करेंगे विच इज योर माइटोसिस 2. आई एम सो सॉरी, 1 सेल था ना, तो फर्स्ट माइटोसिस में 2 सेल बने. फिर माइटोसिस 2 में यू आर गोइंग टू गेट 4 cells and mitosis 3 में you are going to get 8 cells. Now the catch is these 8 cells are going to be arranged in different way in your ovary. इसलिए हमारे पास वो एंटीपोडल्स एंड ये सारी चीज़ें मिल रही थी. ठीक है, सो ये जो फॉर्मेशन है इसमें जो 8 सेल्स बने हैं, these cells are actually 7 cell 8 nucleated, जिसमें से your 1 is going to be your egg, 3 are going to be antipodals, 2 are going to be synergids which is a filiform apparatus,
देन 2 cells आर गोइंग टू बी फ्यूज इन 1 cell, तो उसको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियर. 1 cell 2 न्यूक्लियस. समझ आया? मेगास्पोरोजेनेसिस भी क्लियर है. श्योर. अब मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जो हमारा टॉपिक बनता है वो होता है इसका व्हाट वो वी से पॉलिनेशन का. बट वाई फर्स्ट वी विल फिनिश, आई थिंक हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और वो सब देख लेते हैं, तो दैट विल गिव अ गुड गो थ्रू. ठीक है. अब वी हैव सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? सी तुमको पता है पॉलिनेशन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. क्लियर. सो पॉलिनेशन का हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे. पहले ये समझते कि पॉलिनेशन के बाद क्या हो रहा है. ठीक है. पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, हमारा जो पोलन ग्रेन है वो लैंड कर रहा है स्टिग्मा के ऊपर. जैसे ही वो लैंड करेगा, जो पोलन ट्यूब है वो स्टार्ट होगी फॉर्मिंग. नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, योर पोलन ट्यूब. सो लेट्स एक स्टोरी के जैसा पढ़ते हैं. ठीक है. देयर इज अ सिनेरियो ऑफ लेट्स से एक लड़की एक लड़का है. लड़के को लड़की को इम्प्रेस करना है. ठीक है. सो लड़के को पाथ पता नहीं है. ठीक है. एंड देयर आर 2 कैंडिडेट्स एज अ मेल, बिकॉज वी हैव 2 मेल गैमेट्स, राइट? इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं. सो देयर आर 2 कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू फाइट फॉर अ गर्ल. ठीक है. बट नो वन नोज द पाथ कि वेयर इज दैट गर्ल. तो क्या होगा, पोलन ट्यूब इज गोइंग टू शो द पाथ टू दैट बोथ कैंडिडेट्स. नाउ हु इज गोइंग टू शो पाथ टू द पोलन ट्यूब, क्योंकि पोलन ट्यूब भी कोई एकदम ऐसा ग्रेट पर्सन तो है नहीं जिसको पता होगा हर चीज. तो एग जो है विच इज गोइंग टू बी द गर्ल की फ्रेंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिट्स. सिनर्जिट्स आर गोइंग टू रिलीज सर्टन केमिकल्स जिसकी वजह से पोलन ट्यूब इज गोइंग टू गेट द वे कि वेयर इट हैज टू गो. ठीक है. गया 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 एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है द पोलन ट्यूब इज गोइंग टू जस्ट डिस्ट्रॉय द सिनर्जिट्स. तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या हो गया, अब सिनर्जिट्स का मर्डर हो गया. अब अगर याद हो तुमको, हमारे ओवरी के अंदर 3 एंटीपोडल्स थे, उनको हम हमारा रिलेटिव्स कंसिडर कर लेंगे. और बीच में पोलर न्यूक्लियर है जिसको हम लोग फीमेल के सिबलिंग्स, कंजॉइंट सिबलिंग्स कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. अब सिनर्जिट्स की जैसे ही डेथ होती है, एक सिनर्जिट के माते दूसरे सिनर्जिट भी टाटा बाय बाय, तो दोनों सिनर्जिट्स गायब. अब सिनेरियो में मर्डर हो गया. जैसे ही ये होता है, योर एंटीपोडल्स आर ऑल्सो गोइंग टू जस्ट गो ऑफ, सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू डीजेनरेट. नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आर लेफ्ट, यू हैव एग एंड यू हैव पोलर न्यूक्लियर. सो द फर्स्ट मेल गैमेट दैट रीचेस योर एग इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग. करेक्ट. तो उसको तो अभी वो एग से आगे जाके क्या बनेगा, एग और इसका फ्यूजन हो गया. सो विल हैव जाइगोट, देन एम्ब्रियो, देन फ्रूट, सीड. Yes, seed, fruit, and then your plant and everything will get. But what about that alone person? एक और मेल गैमेट था. Yes. तो हम क्या होता है कि वो जो मेल गैमेट है that is going to fuse with your polar nuclei और वो एक सेल बन जाता है वापस. So it will form 3N. Hence we call it as triple fusion. क्या बुलाते हैं हम लोग? Triple fusion. Understood? So see, so we have something called as double fertilization, which is nothing but your syngamy plus triple fusion. Syngamy क्या है? Fusion of male and female gamete. Triple fusion क्या है? Male gamete plus 2 polar nuclei, which is going to 3N. So your double fertilization is also called as triple fusion. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एंट्री ऑफ योर दिस थिंग. पोलन ग्रेन कैसे एंटर करेगा, तो उसके 3 वेज है. ठीक है. देयर आर 3 मेथड्स फॉर देयर एंट्री. एक होगा पोरोगैमी, दैट इज थ्रू द माइक्रोपाइलेंट प्रॉपरली. सेकेंड इज गोइंग टू बी चलाजोगैमी, दैट इज गोइंग टू बी थ्रू योर चलाजल एंड. थर्ड इज गोइंग टू बी योर मीजोगैमी, विच इज थ्रू योर इंटीग्यूमेंट्स. जो पोलन ट्यूब है वो इंटीग्यूमेंट्स में पोक करके अंदर जाने वाला है. एम आई क्लियर? Sure. Now let's see what are the different types of ovules. So total हमारे पास 6 different types of ovules है. ठीक है. फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. तो ओव्यूल की कंडीशन हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पोजिशनिंग पता चले. ठीक है. सो फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसमें कैन यू से दिस इज द नॉर्मल वन, जिसमें माइक्रोपाइल एंड इज
is where here and chalazal end is here. Yeah, कि उल्टा है. Yeah, this is your chalazal end, this is your micropyle end. If you will see anatropous ovule, this is your micropyle end, this is your chalazal end. If you see this, yes, इसका क्या है, उल्टा, horizontal है. So I can say chalazal end and here is micropyle end. Then you have campylotropous ovule, जिसमें थोड़ी सी slant है, straight line में नहीं होता, slant हो जाता है funicle से attachment. ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा. So this is going to be your chalazal end, this is going to be your micropyle end. Then you have amphitropous ovule, जिसमें और थोड़ा tilted है. And you have celsinotropous ovule, जिसमें completely, see, the funicle is completely wounded to the ovule, we can say. ये दिख रहा है, यहाँ से पूरा ऐसा होकर फिर हमारा अंदर का स्ट्रक्चर बन रहा है. कहाँ पे होता है यूजुअली, जो ओपुंशिया वगैरह होता है उनमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है. जस्ट ऑब्जर्व दिस फॉर अ सेकेंड एंड देन वी विल मूव ऑन. यस, चलो, यस, डन. अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन. सो सी अंडरस्टैंड, अभी हमारा क्या बचा है, वी हैव टू टॉक अबाउट पॉलिनेशन, वी हैव टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ योर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म एंड फूड सीट एंड ऑल. ठीक है, पॉलिनेशन तक हम लोग आज खत्म करेंगे, इसके बाद का विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. So let's start with pollination. What is pollination? Pollination is nothing but transfer. We already discussed there are two types of pollination, self and cross. Self pollination में भी दो टाइप होते हैं हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं autogamy and geitonogamy. What happens in autogamy? When the transfer is on same plant to the same flower. ठीक है, यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा. गीटेनोगामी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर होगा, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, बट प्लांट इज गोइंग टू बी द सेम. So I am going to call it as geitonogamy. Understood? And the third category वो तो different है from one flower to another, which is your xenogamy. Yes. अब what are the contrivances of your self pollination? First of all, movement of floral parts. Yes. तो कुछ कुछ plants में क्या होगा, if epipetalous है तो petals है may move to make anthers कॉन्ट्रैक्ट स्टिग्मा. सेकेंड है क्लिस्टोगैमी कंडीशन. क्लिस्टोगैमी कंडीशन मतलब क्या, जो मेरा फ्लावर है वो हमेशा बंद ही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इंटरनली होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा. देन यू हैव बड पॉलिनेशन, मतलब एंथर्स एंड स्टिग्मा जो है वो इंटरसेक्सुअल या तो परफेक्ट फ्लावर्स जो होते हैं और अपने ऊपर बड्स फॉर्म करते हैं टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन. एग्जाम्पल है वीट, राइस वगैरह. देन वी हैव होमोगैमी. होमोगैमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो चास्मोगैमस हो जाते हैं. एक कंडीशन होती है चास्मोगैमस, वो कंडीशन में होती है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो दोनों भी मेच्योर होते हैं सेम टाइम पे, तो वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे. यू रिमेंबर वी हैव लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड वगैरह में वो हर्कोगैमी एंड ऑल दोज थिंग था. हाँ, वैसा ही है. देन बाइसेक्सुअलिटी, इट इज इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल हो. यस. नाउ वी हैव टू सी द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू, या वी कैन से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. सी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप के, एक बायोटिक और एक अबायोटिक. बायोटिक में आते हैं अपने सारे लिविंग वाले, नॉन बायोटिक में वी कैन से, या अबायोटिक में वी कैन से यू विल हैव प्लांट्स एंड विंड, सॉरी यू विल हैव विंड एंड एयर, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर. ओके, सो लेट्स सी. अभी हम लोग को क्या पढ़ना है ना, सी ये तुमको बेसिक्स पता है, हमको याद रखना है कि उनके मॉडिफिकेशंस क्या होंगे विद द टाइप ऑफ पॉलिनेशन. क्योंकि अगर मेरा फ्लावर हैवी है और उसको किसी ने बोला कि विंड पॉलिनेशन कर, या पोलन ग्रेन हैवी है और उसको विंड पॉलिनेशन बोला, पॉसिबल नहीं है. समझ रहा है? इसीलिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड सर्टन एडाप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, एंड दैट वी आर गोइंग टू लुक नाउ. ठीक है, so let's see first what is the first we have anemophily. first क्या है, anemophily. anemophily में क्या हो रहा है, it is through your wind. example है zea, maize, grass, salix etc. सबसे पहले क्या होगा, the pollen grains are going to be small and light and large in numbers. petals भी small होंगे, green होंगे, and they do not need to attract insects. yes, and they do not need to attract the insects, correct. Then
दे डू नॉट नीड सेंट और नेक्टर्स. किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है तो मुझे ज़्यादा ब्राइट कलरफुल और एकदम नेक्टर वाला स्मेली एंड जूसी होने की ज़रूरत नहीं है. स्टिग्मा इज गोइंग टू बी फेदरी टू कैच द पोलन बाय विंड. दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन एंथर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी थोड़ा सा एक्सपोज्ड, बाहर की तरफ होंगे ताकि वो हवा के साथ उड़ सके. नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली विच इज थ्रू योर वाटर. ठीक है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक हाइपोहाइड्रोफिली और एक एपीहाइड्रोफिली. जो हाइपोहाइड्रोफिली है वो कहाँ होगा, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जिसमें एग्जांपल है जोस्टेरा एंड केराटिलोफाइलम. देन एपी में क्या होगा, इट इज गोइंग टू प्लेस ऊपर का सरफेस ऑफ वाटर पे, जिसमें वाल्सिनेरिया एग्जांपल है. तो इनका मॉडिफिकेशन क्या होगा, इनका जो है फीमेल फ्लावर में अनवेटेबल स्टिकी स्टिग्मा होना इम्पॉर्टेंट है. फ्लावर्स जो है वो ओडरलेस नेक्टरलेस हो सकते हैं, नॉट एन इशू. लॉन्ग स्टॉक होनी इंपॉर्टेंट है, लंबे लंबे होने चाहिए तो ही फिर वो सरफेस से पॉसिबल होगा ना प्रोसेस. मेल फ्लावर्स जो है वो वाटर करंट से जाने वाले हैं फीमेल तक. एंड पोलन ग्रेन्स जो है वो अगेन स्मॉल लाइट वेटेड नॉन स्टिकी होने चाहिए. यस. देन यू हैव एंटेमोफिली सॉरी विच इज थ्रू योर इंसेक्ट्स. एग्जाम्पल है रोज एंड हिबिस्कस. अडाप्टेशंस क्या है, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, नेक्टर वाले होने चाहिए. यस. अगर छोटे छोटे फ्लावर्स है तो ग्रुप में होने चाहिए. एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे इंसेक्ट्स आ सकें. देन ओडर अच्छी होनी चाहिए, नेक्टर एडिबल होने चाहिए. पोलन ग्रेन्स जो है वो रफ, स्पाइनी और स्टिकी हो सकता है. सो दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ योर एंटेमोफिली. देन वी हैव ऑर्थिनोफिली. व्हाट इज ऑर्थिनोफिली? व्हेन द पॉलिनेशन इज गोइंग टू बी बाय बर्ड्स. अब बर्ड्स में किसका, निकोटिना एंड कैल्सिडोटम में हो रहा है. एडाप्टेशंस क्या चाहिए, फ्लावर्स का जो टेक्सचर है वो बर्ड्स के चीज़ों वे को मैनेज करना चाहिए. फ्लावर्स शुड बी टिब्यूलर, कप शेप्ड एंड ब्राइटली कलर्ड, लार्ज साइज. बर्ड्स ट्राई टू ड्रिंक नेक्टर, सो इट शुड बी नेक्टरी, वेरी मच नेक्टरी. यस. देन यू हैव बैट्स. बैट्स वाले को अपन बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली. चिरोप्टेरोफिली का एग्जाम्पल क्या है, बहुहीना एंड किगला. ठीक है, इसमें अडाप्टेशंस क्या होंगे, लॉन्ग पेडिसल्स चाहिए. डल कलर चलेगा क्योंकि बैट्स का इतना कुछ कलर से लेना देना है नहीं. ठीक है, डल कलर चलेगा बट स्ट्रॉन्ग ओडर चाहिए क्योंकि वो ओडर के इससे ही वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं. देन फ्लावर्स शुड बी ओपन, एंथस डाइसेंस एंड ऑलमोस्ट, ये जो अडाप्टेशन है वो सही से होनी चाहिए. अब ये तो जनरल हो गया. ठीक है, अगर इनमें अगर आई टेल यू पॉलिनेशन हो रहा है बाय स्नेल तो उसको क्या बोलोगे, इज माई क्वेश्चन. ठीक है, सो द क्वेश्चन फॉर यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास इज व्हाट इज द पॉलिनेशन बाय स्नेल कॉल्ड. You are going to answer me in the next class and then we are going to continue with the next part of the chapter, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे. किसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म की, एम्ब्रियो की. एंड देन we'll go to talk about we have to talk more about pollination, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे. देन डेवलपमेंट की बात करेंगे एंड देन we'll talk about fruit seed and then we'll be done with the chapter. So moreover in the next class we will finish that chapter. Okay. So I'll see you guys in the next class. Okay, don't forget the homework.